تو ظاہری بات ہے جب یہ پرانے کارتوس ہیں یہ چل چکے ہیں تو ان کے پلے اب کیا ہے؟ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، 30 سال سے کچھ نہیں کیا تو اب یہ کیا کریں گے؟ چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد نے یہاں پر دیپال پور میں ایک یونیورسٹی بنانے کا مطالبہ کیا اپنے والد کے نام، یہ بہت بڑا پروجیکٹ العزیز یونیورسٹی، اور یہ اربوں کا پروجیکٹ ہے۔ کوئی بندہ اپنی جیب سے سوچ نہیں سکتا، بلکہ سرکار یہ نہیں سوچ سکتی کہ دیپال پور کو یونیورسٹی دی جائے، اور میرا بھائی چودھری اورنگزیب یہاں پر یونیورسٹی دے رہا ہے، اور عید کے فوراً بعد یہاں پر زمین خریدی جائے گی اور اس پر جلد سے جلد کام ہوگا۔ ان کے لیے جو راشن پیکج دیا ہے تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ کا دیا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم یوتھ کے ذریعے وہ تمام حلقہ آباد میں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ دیپال پور کی سرزمین کندووال سے تعلق رکھنے والی معروف سیاسی سماجی شخصیت، سابقہ وائس چیئرمین، ڈویژنل یوتھ صدر پاکستان تحریک اتحاد، چیئرمین پاکستان کسان اتحاد ساہیوال ڈویژن، جناب چودھری محمد جاوید جٹ سیرا صاحب، کیا حال ہے جناب؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں شرازی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ پہلے نمبر پر تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل 91 نیوز کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، شکریہ، مہربانی۔ آپ نے 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کا کیا راز ہے؟ شرازی صاحب، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا جی، یہ آپ کو پتہ ہے گھروں کے الیکشن ہوتے ہیں، چولہوں کے الیکشن ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں سے محبت کریں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پیار کریں گے، اتنا پیار دیں گے تو ظاہر ہے اس کے بدلے ہمیں پیار ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری پیار ہے، ہماری محبت ہے، ہمارے دن رات کی محنت ہے کہ ہمارے علاقے کا جو بندہ جس ٹائم بھی ہمارے پاس آتا ہے، وہ دن کے 12 ہو یا رات کے 12، ہم ان کی خدمت کے لیے ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کہنے پر لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے کہنے پر ہر جگہ ہر مقام پر لبیک بھی کرتے ہیں۔ آپ کی پہلے سیاسی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے تھی اور آپ کا شمار وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ اکھاڑا راؤ سعد اجمل خان کے قریبی دوستوں میں کیا جاتا تھا، اور پھر آپ اچانک پاکستان تحریک اتحاد میں آپ نے شمولیت اختیار کر لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شرازی صاحب، اصل میں نا جی اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ان جماعتوں میں ابھی بھی بہت معرومیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے طبقے کے لیے بھی معرومیاں اور بڑے طبقے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے مکمل پرفیکٹ ہماری ہر معرومی کو، ہماری ہر جو ہمارے پاس معرومیات ہیں اس کو بالکل ختم کرے، لیکن یہ جماعتیں ابھی تک ہمیں ABC سے باہر نکال ہی نہیں رہی، وہی ہمارے پرانے معاملات ہیں، وہی ہماری پرانی چیزیں ہیں، اس پر ابھی تک اس پر کام نہیں ہو رہا، اوپر کے درجے پر انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ پاکستان تحریک اتحاد کے ساتھ شمولیت، یہ میری اپنی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا چیئرمین چودھری اورنگزیب جٹ سرا میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ خود جماعت بنائی ہے، ہم نے خود یہ جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کہ جو معرومیاں دوسری جماعتوں کے اندر ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو معاملات ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک ان پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک اتحاد چونکہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے، پاکستان تحریک اتحاد کا منشور کیا ہے؟ سر، ہمارا جو منشور ہے نا، بیسیکل پاکستان تحریک اتحاد، ہمارا منشور 2-3 لفظوں میں ہے کہ اتحاد، ٹھیک ہے؟ وہ اتحاد ایک گاؤں کا اتحاد، وہ بھی اتحاد ہے،
एक शहर का इत्तेहाद वो भी इत्तेहाद है, एक मुल्क का इत्तेहाद वो भी इत्तेहाद है, और पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद वो भी इत्तेहाद है। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि इत्तेहाद हम देखें। हमारा चेयरमैन साहब जो यानी कि आप उम्मत के इत्तेहाद के लिए उम्मत के इत्तेहाद के लिए काम करना चाह रहे हैं। हर मजहब, ठीक है, हर फिरके को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना हमारा सबसे अव्वलीन तरजीह ये होगी। ठीक है, हम ऐसे निकात बनाएंगे जिस पर हर फिरका मुतफिक होगा। जी, आप पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के यूथ के डिविजनल सदर मुंतखब, जी जी, नौजवान नस्ल मुल्क पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जी जी। आप नौजवानों के लिए क्या इनकलाबी इक़दाम उठाएंगे? शिराजी साहब देखिए ना, मैं एक बड़ी तलख सी बात करना चाह रहा हूँ कि जो पहले जिस जमात ने भी यूथ से काम लिया है ना, उनको सवाए नारों के और अपनी चमचागिरी के अलावा उनसे कुछ नहीं करवाया। बहुत सब लेकिन आज मैं आपको ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये जमात सही मायनों में यूथ को इज्जत देगी। ठीक है, और इज्जत दे भी रही है। हमारा जो यहाँ पर हमने फलाई काम करने हैं ना जी शिराजी साहब, वो हमने यूथ के जरिए करवाने हैं। जी। उसका सबसे पहला जो हमने इक़दाम किया है वो हम इधर लगा रहे हैं मेडिकल कैंप, और वो यूथ की निशानदेही पर लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर चौधरी औरंगजेब साहब ने जो पैकेज दिया है राशन का, गरीब आवाम के लिए जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके लिए जो राशन पैकेज दिया है तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख का दिया है जी। ठीक है, वो भी हम यूथ के जरिए वो तमाम हल्का अबाब में वो तकसीम कर रहे हैं, और वो यूथ ही हमारा सबसे अव्वल दस्ता होगी जो ये सारे काम कर रही होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की जानिब से रमज़ान राशन पैकेज दिया जा रहा है, जी, क्या ये सियासी कैंपेन का हिस्सा है? सर देखे ना, ये सियासी कैंपेन का हिस्सा तो उस वक्त हो ना कि ये वो पहली दफ़ा कर रहे हो। ठीक है, जब वो सियासत में नहीं थे उस वक्त भी उन्होंने ये किया था, और अब वो अगर सियासत में आ गए तो क्या वो ये बंद कर दें? नहीं, ये उस वक्त भी था और अब भी है। ये खालसन अल्लाह की रज़ा के लिए है। ठीक है, वो पहले भी करते आ रहे हैं, उनका ये पहला काम नहीं है। उनके अल कबीर के वहाँ पर लंगर खाने चल रहे हैं, एम्बुलेंसें चल रही हैं, वो सियासत से पहले की चल रही है। सही। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद कौमी सतह की सियासी जमात है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद हल्का NA-143 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने हल्का NA-143 का इंतखाब क्यों किया? शिराजी साहब, हल्का 143 का इंतखाबात पहले नंबर पर तो ये बात है कि वो यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ से ही क्या है, यहाँ पर ही उनके बहुत अजदाद है। ठीक, उनकी ज़मीनें यहाँ थी, बिक गई, जो भी हुआ। ठीक है, तो हमने सारी बरादरी ने इकट्ठा होकर उनसे ये कहा कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो अपने हल्के से लड़ें। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं। ठीक है, अगर चौधरी साहब यहाँ आए हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर महरूमी जो महरूमियाँ हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उन महरूमियों को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, और उन लोगों तक हर वो चीज़ पहुँचाएंगे जो उसके हकदार हैं। हल्का NA-143 में एक तरफ राव मोहम्मद अजमल खान और दूसरी तरफ सैयद रजा अली गिलानी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद गुलजार हसनैन शाह साहिब बतौर MNA उम्मीदवार हैं। आइंदा जनरल इलेक्शन में आप सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की पोजीशन को कैसे देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रूर हैं। ये राव साहब भी हैं, रज़ा शाह भी हैं, गुलजार हसनैन साहब भी हैं। ठीक है, लेकिन ये देखें ना, ये 30 साल 40 साल से यह काबिज हैं, इनके पास इक़्तिदार भी रहे। लेकिन आप किसी भी बंदे को यूँ टच करके देखें, वो आपको रो कर दिखाएगा कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जो हमारे माशरे के लिए, जो हमारे लोगों के लिए बेहतरी का सबब बना। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब ये पुराने कारतूस हैं, ये चल चुके हैं, तो इनके पल्ले अब क्या है? इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, 30 साल से कुछ नहीं किया, तो अब ये क्या करेंगे? ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद आपको कुछ करके दिखा भी रही है और दिखाएगी भी। ये खालसन अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की खिदमत के लिए बनाई गई है। और आप देखेंगे शिराजी साहब, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ,
कि आप देखेंगे कि हम किस तरह लोगों को डिलीवर करते हैं। इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं, लेकिन जिस माशरे में नौजवान चापलूसी के रास्ते पे चलते हों वहाँ इनकलाब नहीं आता बल्कि गुलामी राज करती है। तो सवाल मेरा जो सब ये बनता है कि आप बतौर डिविजनल यूथ सदर इस हवाले से क्या राय रखते हैं? जी शराजी साहब, इस हवाले से हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ क्लियर है कि हमने यूथ को इज़्ज़त देनी है, ठीक है जी। और यूथ को ऐसी इज़्ज़त देंगे जो पहले किसी पार्टी ने नहीं दी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो काम देखें, आगे हम इज्तिमाई शादियों का एक चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और इज्तिमाई शादियाँ करनी है। तो हमने ये नहीं करना कि वहाँ के जो चौधरी उनसे पूछना कि भाई तुम्हारा नौकर है उसकी बेटी, ऐसी बात नहीं होगी। हम यूथ के ज़रिए निशानदेही करवाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वाकया ही ये लोग डिज़र्व करते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमने यूथ के ज़रिए करनी है, ये सारे मामलात यूथ के ज़रिए होंगे और यूथ को पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद में खालिसन इज़्ज़त मिलेगी। आज के दौरे जदीद में भी गरीब नौजवान का सबसे बड़ा ख्वाब तालीम हासिल करना है। आप गरीब नौजवानों के लिए तालीम के हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? शराजी साहब, तालीम के हवाले से मेरे भाई, मेरे कैद चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद चौधरी औरंगज़ेब जट सरा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, ठीक है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ ऐलान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि माह रमज़ान के बाद उस पर मुकम्मल काम भी होगा। और वो ऐलान आपको भी पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद ने यहाँ पर दीपालपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा किया अपने वालिद के नाम। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अल अजीज यूनिवर्सिटी, और ये अरबों का प्रोजेक्ट है। कोई बंदा अपनी जेब से सोच नहीं सकता, बल्कि सरकार ये नहीं सोच सकती कि दीपालपुर को यूनिवर्सिटी दी जाए। और मेरा भाई चौधरी औरंगज़ेब यहाँ पर यूनिवर्सिटी दे रहा है और ईद के फौरन बाद यहाँ पर ज़मीन खरीदी जाएगी और उस पर जल्द से जल्द काम होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये झूठा वादा नहीं है, ये आप देखेंगे और हम आपको ईद के बाद फौरन करके इंशाल्लाह बिल्कुल। आप सियासत के साथ साथ किसानों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। आप बतौर डिविजनल चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद किसानों के लिए हुकूमती पॉलिसीज पर क्या राय रखते हैं? शराजी साहब, जो हुकूमती पॉलिसी है ना किसान के बारे में जी, वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, ठीक है। पहले नंबर पर आपको पानी के मामला देखें, ट्यूबवेल के बिल इतने बढ़ चुके हैं कि पहले 5 रुपये 35 पैसे यूनिट हुकूमत ने फिक्स किया था, लेकिन इस हुकूमत ने उसे 13, 14, 15 रुपये कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा जुल्म है किसान के साथ, और ये मैं माजरत के साथ भी कहूँगा कि इस हुकूमत ने किसान पर के लिए कुछ काम नहीं किया। दूसरे नंबर पर देखें, ये एक डीएपी में टोकन सिस्टम लगा दिया है। सर माजरत के साथ मैं एक बात आपकी बात काट रहा हूँ, इस हुकूमत ने आलू का रेट भी तो काफी ज्यादा कर दिया था। आलू का रेट तो मेरा ख्याल है 6000 रुपए तक ये जो पहुंच गया था बोरी का। तो आप कह रहे हैं कि कोई मतलब डिलीवर नहीं कर पाएगा? साहब देखें ना, अगर 6000 पर रेट पहुंच गया था आलू का, तो 5000 वाली डीएपी वो भी तो 8000 की होगी, 6-7 हजार की होगी। 1768 रुपए वाली यूरिया हमें 2500 रुपए की मिल रही, वो भी ब्लैक में, और 2 महीने पहले पैसे जमा कराने के बाद मिल रही है। और वो भी रात को फोन करते हैं कि भाई आन का ले जाओ, वहाँ पर खड़ा है हमारा कंटेनर, वहाँ से चोरों की तरह जिस तरह कुछ चोरी करनी होती वैसे जाकर यूरिया खाद लेकर आते रहे। सर ये बड़ा, ये सारी माफिया ना, इसने किसान को लूटा है। देखें आप, एक चीज का रेट है, गंदम का रेट है अगर 2200 रुपए, ठीक है, ये 2000 की डीएपी कर दें, ठीक है, तो हमसे 1500 में गंदम ले लें, हमें तो कोई मसला नहीं होगा। जब डीएपी 8000 की होगी, 7000 की होगी, तो हमें 2200 में भी कोई मुनाफा नहीं होगा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि चौधरी साहब नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद की किरण साबित होंगी। टीम 91 न्यूज़ और अपने मेज़बान फ़याज़ शाज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।